Hi students, how are you? I think you all are fine. We complete our sixth chapter, and I think you all are done your exercise question or sixth chapter in your notebook. आपको कक्षा चैप्टर 6 के नोटबुक के अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी आपको करना है. एंड नाउ टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर. We discuss new chapter, we learn new chapter, chapter 7, conservation of plant and animals. Dear students, whenever you go on tourist any hill station and any forest, you saw many types of plants and animals freely moved any place in our earth. You also watched these types of activity in our earth. There are many plants and many animals. Human cannot disturb them. So these animals and plants in large amount of in our earth we called it forest. उसे हम क्या कहते हैं? Forest कहते हैं. Some example of the forest, some reserve forest, some we as like sanctuary. You also heard some name of sanctuaries as like Ranthambore, Kaziranga. These sanctuaries are also you heard about it. It is a large palace. There were many animals and plants reserved, and human activities prohibited there. Dear students, in this chapter we learn all about the forest and animals and their reservations and what's the benefit for their reservation, what causes for their reserve, and what a benefit for forest, what a benefit for forest in our life, and how can we reserve them, reserve कैसे कर सकते हैं, all about discussed in the chapter we learn. Dear students, first of all, deforestation. Deforestation, what do you mean by deforestation? There were many plant and animals and animals exist on our earth. They are essential for our well-being and survival of mankind. We called it forest. And today's a major threat for survival of their life organism and for with benefit of our human we are destroyed them. We called it डिफॉरेस्टेशन. उसे हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन. फॉरेस्ट मीन्स जंगल, और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हम हमारे मानव के लाभ के कारण इस फॉरेस्ट को अगर हम डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड अदर पर्पस. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट को क्लीन कर देना, और जो फॉरेस्ट की लैंड होती है वो अदर पर्पज के लिए उसे यूज करना, अन्य कार्य के लिए उसे यूज करना. ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पज मेंशन बिलो. हम पेड़ को कट क्यों करते हैं, पेड़ों को क्यों काटते हैं, उसके सम पर्पज होते हैं, कुछ कारण होता है, हमारा कुछ बेनिफिट होता है उसके अंदर. तो वी डिस्कस अबाउट दीज बेनिफिट इन दिस चैप्टर फॉर रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन. व्हाट इज रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन का रीजन क्या है? यू आर आल्सो थिंक, आप डिफॉरेस्टेशन का रीजन क्या है, आप भी सोचिए हम पेड़ों को क्यों काटते हैं. डियर स्टूडेंट्स, वी रिक्वायर लैंड फॉर आवर एग्रीकल्चर. हमें एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए. तो लैंड चाहिए तो हमें क्या करेंगे? लैंड हमें कहाँ से ये प्राप्त होगी? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल कट डाउन मैनी ट्रीज एंड मेक्स आवर फील्ड. हमें फील्ड बनाते हैं एंड देयर वी ग्रो क्रॉप. जहाँ पर भी हम जो फसल का उत्पादन करते हैं, वी ऑब्टेन क्रॉप फ्रॉम देयर, जहाँ से हम फसल प्राप्त करते हैं. तो इट इज वन रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन. एंड सेकंड डिफॉरेस्टेशन रीजन फॉर, यू आल्सो मेंशन, यू थिंक दैट देयर वर मैनी रेलवे लाइन्स, मैनी फैक्ट्रीज. इन पर्पज वी रिक्वायर्ड लैंड इन हाईवे
road, we required land, and these purpose we cut down many trees. It is another reason for deforestation. इसका another कारण भी है एक deforestation का. And we were making many types of buildings and our homes, our house. In our house there were many furniture. They were made from wood, जो किससे बने होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं. और we obtain wood, हमें wood प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we cut down trees, हमें पेड़ों को काटना पड़ेगा. तो it is another reason for deforestation. ये भी एक deforestation का कारण है. डिफॉरेस्टेशन के कुछ नेचुरल रीज़न भी है. डिफॉरेस्टेशन मीन्स अगर जंगल के अंदर कहीं फायर लग जाती है, सडनली फायर इन जंगल. यू आल्सो हेयर दैट इन कैलिफोर्निया एंड आपका सुना होगा सम डेज अगो देयर वर मैनी ट्रीज, फॉरेस्ट के अंदर मैनी ट्रीज है वो बर्न विथ फायर के अंदर वो सभी जल गए. तो इट इज़ अनदर रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन. एंड डॉग मतलब सूखा पड़ना, क्या पड़ना, सूखा पड़ना, मतलब रेनफॉल है वो नहीं होगी. और रेनफॉल नहीं होगी तो इट इज जो न्यू प्लांट है वो कैनॉट प्रॉपर ग्रोथ, दे कैनॉट ग्रो, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए भी इसेंशियल वाटर फॉर ग्रोइंग प्लांट. प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें वाटर चाहिए. और अगर रेनफॉल नहीं होगी मीन्स ड्रो, तो उसके लिए हमें now we discuss the consequence of deforestation. What effect of deforestation in our life, हमारे लाइफ के ऊपर डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, हम चर्चा करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, यू आर थिंक दैट अगर प्लांट क्या करती है, प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो यूज करती है तो और प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस. एंड अगर प्लांट नहीं होगा तो इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल है वो बढ़ जाएगा. और अनदर जैसे ग्राउंड वाटर है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा. एंड डिफॉरेस्टेशन से हमारा जो नेचर का बैलेंस है वो कम्प्लीटली है वो चेंज हो जाएगा. और हमारी सोइल है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा. डियर स्टूडेंट्स, यू रिकॉल द यू थिंक दैट जब रेन होती है तो रेन के लिए हमें क्या रिक्वायर होता है कि जो प्लांट होती है, प्लांट इवेपोरेशन करती है. प्लांट्स इवेपोरेशन से क्या होगा, ऑल द वाटर चेंज इनटू वेपर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वेपर चेंज इनटू लार्ज अमाउंट ऑफ वेपर होगी. और लार्ज अमाउंट ऑफ वेपर से वापस चेंज होकर के हमारा जो रेनफॉल होता है, बरसात होती है. तो इट इज प्लांट आल्सो मेन रोल इन आवर रेनफॉल. रेनफॉल के अंदर प्लांट का भी मेन रोल होता है. एंड डियर स्टूडेंट्स, यू आल्सो थिंक दैट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यू लर्न ऑल अबाउट इट. फोटोसिंथेसिस, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? इन द फोटोसिंथेसिस वी यूज carbon dioxide gas and plant use carbon dioxide gas and level of carbon dioxide gas decrease. And if there were no plant, अगर plant नहीं होगा तो level of carbon dioxide gas क्या होगी, increase हो जाएगा. It means large amount of carbon dioxide is produced in our environment due to different types of pollutions, vehicle burnings. कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होगी तो लेवल ऑफ टेम्परेचर बिकम हाई इन आवर अर्थ. हमारे अर्थ का टेम्परेचर लेवल है वो भी बढ़ जाएगा. वी कॉल इट ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे. और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, व्हाट हैपन, ग्लोबल वार्मिंग से मैनी इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ. बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा हमारे इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर बताया था. इससे बहुत सारा हमारी ज़िंदगी के ऊपर, लाइफ ऊपर इफेक्टेड होगी फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग. और इट्स आल्सो कोजेज फॉर रेनफॉल की कम होने का एंड
डफ मतलब सूखा पड़ने का, इट इज़ आल्सो कॉजेज बनेगा डिफॉरेस्टेशन, ये ग्लोबल वार्मिंग से। डियर स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन इज मेजर कॉजेज विच लीड्स द चेंज इनटू सोइल प्रॉपर्टी। तो हमारे सोइल के अंदर प्लांट क्या करती है, मैं एक से ह्यूमस, प्लांट क्या बनाती है, ह्यूमस बनाती है। ह्यूमस मीन्स जो सोइल है, सोइल के अंदर मेक फर्टाइल विथ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, लीफ, फ्लावर एंड ब्रांचेज डिकम्पोजिस्ट एंड मेक्स दे इन्वॉल्व इन सोइल, सोइल के अंदर मिल जाती है एंड सोइल्स मेक ह्यूमस, सोइल्स को ह्यूमस बनाती है और दीज ह्यूमस इज वेरी बेनिफिट, सोइल को फर्टाइल बनाता है। ह्यूमस है वो सोइल को क्या बनता है, फर्टाइल बनाता है और फर्टाइल सोइल से इज बेटर फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड गेट हाईएस्ट यील्ड, अच्छा उत्पादन प्राप्त करती है फ्रॉम ह्यूमस के अंदर, अगर ह्यूमस आर प्रेजेंट इन सोइल, ह्यूमस अगर सोइल के अंदर उपस्थित है तो प्लांट आल्सो हेल्प अस फॉर मेकिंग ह्यूमस, प्लांट भी हमारे ह्यूमस मेकिंग में हमारी हेल्प करते हैं। और दी जो प्लांट आल्सो चेंज द टेक्सचर ऑफ द सोइल, सोइल का जो टेक्सचर है, बनावट है, संरचना है, वो भी चेंज हो जाती है प्लांट से। एंड प्लांट आल्सो इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी सोइल की इंक्रीज हो जाती है, मीन्स ग्राउंड वाटर लेवल भी हाई हो जाएगा। इन प्लांट इसमें भी हमारी है वो हेल्प करते हैं। एंड प्लांट आल्सो प्रिवेंट द सोइल इरोशन, इरोशन मीन्स सोइल है वो फ्लाई विथ एयर उड़ करके चली जाती है या विथ पानी के साथ में चल करके 1+2 अंदर पहले सोइल चली जाएगी तो ये क्या होगा, सोइल विल बी अनफर्टाइल और सोइल का जो अंदर का भाग होता है, लोअर पार्ट होता है, वो रॉकी होता है, चट्टानी होता है, दीज आर नॉट फर्टाइल, वो फर्टाइल नहीं होता है, वो ओपन हो जाएगा, वो एक्सपोज हो जाएगा। तो वो एक्सपोज हो जाएगा तो वो हमारे लिए बहुत ही मतलब फर्टाइल है, वो नहीं होगा। तो प्लांट है वो जो इरोशन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, सोइल इरोशन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स, वी आर लर्न दैट इफेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इन आवर लाइफ, consequence of the deforestation in our life, in all organism, not all life, but all organism affected from consequence of deforestation। डिफॉरेस्टेशन से न केवल ह्यूमन प्रभावित होगा, बिल्कुल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी इफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे। नेक्स्ट चैप्टर वी लर्न द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगले चैप्टर में हम कंजर्वेशन, हाउ कैन वी कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को हम कंजर्व कैसे करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, गुड बाय।